All right, so we are completing the winter 2020 paper, and I'll give the other variants to you as homeworks. So let's do it. Doing one paper with me will definitely help you out, I'm sure, because the other variants are very similar to this one. So when you go through this solution and when you try to apply the same things that you've learned here over there, you will see a significant improvement. So let's do it. Give one other reason why petroleum companies carry out cracking. Okay. So why would the company want to carry out cracking? Okay. So first is that they want to make alkenes. The other reason is that they probably want to make hydrogen, or they want to have smaller fractions that burn easily. So let's suppose you have bigger fractions that आपको petrol बनाना है, so you can simply break them down and you will be able to get uh, smaller fractions like petrol from that. Okay, so that's why petroleum companies would like to do that. Okay, complete the equation for the cracking. Now cracking is a catalytic process. इसमें catalyst होता है, aluminium oxide usually use करते हैं. But the main thing you have to understand is that you have complete control over कि आप कैसे तोड़ो किसी चीज को. You just have to break it down. You just have to balance it out. So right now they are breaking it down by making alkene, oh sorry, which is propene, and then the remaining thing, because there is only one of that, so it will be C10 because 3 यहाँ पे आ गया out of 13, and H22. Okay, and this thing will be decane. How do I know that it's an alkane? Because it follows the formula CN2N H2N plus 2. ठीक है? So that's decane. It's a saturated compound. Alkane हमें यहाँ से मिल गया. Okay, write the general formula of alkene. Alkene का general formula क्या होता है कि आपके पास CH2 होता है and that multiplied by N. You can either put that or you can break it up and you can put CnH2n. Both of them are acceptable. Okay, so both of them would do. Propene reacts with steam by an addition reaction. This is the reaction that we talked about yesterday at the end of the class. Predict the molecular formula of the product. So again, they have told us what the reaction is. We have propene, we are adding steam to it, and when you add stuff, it literally just adds up. So it becomes C3H8O. Okay, that's literally what happens. Obviously that thing is propanol. So the molecular formula, the one that we have to give, you can give C3H8O or you can give C3H7OH. Both of those are acceptable. Okay. When propene undergoes incomplete combustion, this is important. When things burn incompletely, that means they are not getting enough oxygen. So carbon dioxide is produced if उससे भी ज्यादा इनकम्प्लीट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस, और अगर उससे भी कम ऑक्सीजन अवेलेबल है तो जस्ट कार्बन आएगा जिसको हम सूट कहते हैं. अब उसमें यहां पर उसने हमसे नेम पूछा है. सो व्हेन यू नेमिंग इट यू विल से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जस्ट कार्बन. ओके, लेकिन एक और बात है, वी ऑलरेडी नो दैट स्टीम इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, तो हम वो भी यहां पर लिख सकते हैं. ठीक है, सो देयर इज स्टीम, देयर इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देयर इज कार्बन. लेकिन फिर हमें यहाँ पे स्टीम क्यों नहीं लिखना चाहिए, हमें कार्बन क्यों लिखा है हमने? एक्चुअली हमें स्टीम लिखना चाहिए, कार्बन हमें नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर सेम प्रोसेस, और वो उसने हमें 2 अदर सब्सटेंसेस का बोला है. तो राइटिंग स्टीम और वाटर विल एक्चुअली हेल्प अस आइडेंटिफाई कि अच्छा पूरा रिएक्शन, जब एक रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उसमें क्या होगा. तो जब एक दफा वो बर्न करता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम बनता है या कार्बन और स्टीम बनता है, तो इन बोथ केसेस कभी भी कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठा नहीं बन रहा है. दैट इज व्हाई यू ईदर राइट कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन यू राइट स्टीम, क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स हैं, दोनों का बताना है. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन इज, या श्योर, व्हाट इज इट? Can we write CO instead of carbon monoxide? We can, but उसके लिए देख लेते हैं कि यहां पे हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. यहां पर द कमांड वर्ड इज नेम, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट थिंग, नॉट द फॉर्मूला. अगर यहां पे वो आपसे कहते हैं ना आइडेंटिफाई, तो तब आप CO और H2O लिख सकते थे. यू कैन राइट वाटर, दो स्टीम की जगह आप वाटर लिख सकते हो, लेकिन नाम पूरा लिखना. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन इज शोन, डिड्यूस द पार्शियल स्ट्रक्चर. पार्शियल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो कि हमें बताता है
कि पूरे पॉलीमर को बनाने की बजाय, बिकॉज देयर आर thousands and thousands of those repeating structures, हम partial structure बनाएंगे, छोटा वाला structure. अब उसको बनाने के लिए तरीका क्या है? First of all, आपने डबल बॉन्ड को सेंटर में कर देना है और हर चीज इस स्ट्रक्चर में फिट करनी है. ये अभी एक साइड पे निकला हुआ है ना, इसको नहीं रखना. Bring it down to this side. Make it maybe CH3. If you don't want to make it CH3, you can make it like this. But fit it into this pattern where you have a double bond in the middle and hydrogen and everything else on the sides. And now to make a repeat unit, you'll draw this thing again without the double bond. And that is what a repeat unit is. You draw the same thing without the double bond. तो क्या करना है? सबसे पहले you fit it into this pattern where the double bond is in the center and everything else is on the sides. And then you join it together. So this is repeated again on both sides. Okay? And that's it. We've drawn it. सर तो आपने CH3 क्यों लिया? CH3 इसलिए लिए क्योंकि देखो हमारे पास प्रोपीन के स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ क्या क्या अटैच्ड है. यू हैव अ हाइड्रोजन 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 एंड दिस होल थिंग मेक्स CH3. Why am I combining this thing? Because double bond यहां से टूटनी है and double bond is the reason it can polymerize. So double bond मेरा focus है, everything else is just on the sides. तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन कंप्लीट कर दोगे. 3 रिपीट यूनिट्स उसने खुद मांगे, इसने आपने 3 ही बनाने हैं. All right, so now we're done with section A. Section A has 5 questions which are all compulsory, and as you have noticed, उसने पूरे syllabus से question पूछे. They haven't taken a step out and they haven't been like अच्छा ये chapter हम नहीं देते, which means you cannot skip on a chapter. In section 4, you have a choice. You have to choose 3 questions out of 4. Every question here is of 10 marks, but when we are practicing, हम चारों question करेंगे. Okay? And when you solve them, आप चारों question solve करेंगे ताकि मैं उसको check करूं and we know where we are lacking. Exam में because we have added pressure, time constraints, so many other things, हम वहां पर 4 की बजाय 3 कर लेंगे. सही है? अच्छा, यहाँ पर भी एक मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के पास होता है कि अगर मैंने 4 क्वेश्चन किए हैं तो एग्जामिनर मेरे सिर्फ 3 काउंट करेगा, पहले वाले और चौथे वाला नहीं काउंट करेगा. ऐसा नहीं होता. When you do solve 4 questions, examiner check 4 questions and then they pick the top 3 out of those. ठीक है? तो आप 4 अगर आपके पास टाइम है तो आप उन चारों को सॉल्व कर दो. Okay. What does the term weak mean when applied to acids? Notice कि उसने हमसे पूरा weak acid नहीं पूछा है. ठीक है? तो हम यहाँ पर H positive का नाम पूरा देना भी जरूरी, बताना जरूरी नहीं है. ठीक है? हमें सिर्फ ये बताना है कि weak का क्या मतलब है. And weak means it is partially ionized. Now, what does that mean? यहाँ पर एक common mistake students कर लेते हैं कि वो कह देते हैं it slowly ionizes. You don't have to mention that. Slowly ionize नहीं होता. Ionization process takes equal amount of time. It's just that if you have 1,000 molecules, very few of them are ionized. सारे के सारे molecules उसमें take part नहीं करते हैं. That's what it means, partially ionized. You can say slightly ionized, but don't say slowly ionized. Okay? Next one. Methanoic acid reacts with magnesium powder. Just give me a minute. All right. Construct the equation for this reaction. What's happening? You have methanoic acid and you have magnesium powder. Now remember, the reactions of metals and acids, as far as the equation goes, it's exactly the same regardless of whether it's a strong acid or weak acid. क्यों? क्योंकि reaction क्या है? It's a displacement reaction. Acid ने H positive देना है और metal ने उसको replace करना है. That's it. In weak acids, the question usually arises कि वो कहां से lose करेगा? Which H positive will it lose? Because
You may be like, okay, there's H here and there's H here. कौन सा वाला lose करना? Remember, it's always the H with oxygen that is gone. Because this is the one that it is ionizing, that it's losing. Oxygen plays a role there. Okay? So remember this thing. वरना तो आपके alkanes, alkenes सारे ये काम करें, उनमें भी कार्बन और हाइड्रोजन होता है. अगर इसी हाइड्रोजन ने जाना हो तो वो वहां पे भी जा सकता है. लेकिन why is this particular functional group making it acid? Because ये hydrogen with oxygen is the one that's going to lose. Okay? So let's just do that. This magnesium is going to come and replace it. Sorry, it should be H2. No. Yes. तो अब होगा क्या? If this is going to become H positive, this whole thing is going to become negative. So that means magnesium is going to come and react with two of this. So HCO2 2. ठीक है? That's our answer because magnesium is positive 2. So cross multiply हो जाते हैं. Obviously, you will not mention these charges when you're writing your actual answer. ठीक है? So HCO2H. Now you balance this out. You need two of this to balance it out, and there you go. We don't need to put state symbols there because they haven't asked for them. State and explain how the rate of this reaction changes when the reaction is repeated using a piece of magnesium ribbon with the same mass as the powder. Now remember, powder means particles are more exposed. It does not mean that particles are smaller. Magnesium particles, जो magnesium के atoms हैं, they're still the same size. It's just that they have greater surface area. क्योंकि वो powder में particle का size वही रहता है, उस चीज का size छोटा हो जाता है. It has higher surface area, जिसकी वजह से it's more exposed. Okay, so you have to talk about particles being exposed, greater rate of collisions, या greater number of collisions per unit time. So you either use the word rate or you use the word use the term per unit time whenever you're talking about these collisions. Okay, so अब उसने आपसे स्टेट करने का भी कहा है, एक्सप्लेन करने का भी कहा है. सो स्टेट तो आप सीधा सीधा कर दो कि रेट विल डिक्रीज. क्यों डिक्रीज कर रहे हैं? बिकॉज ऊपर वाले में उसके पास पाउडर है और अब उसके पास रिबन है. रिबन ऑब्वियसली बड़ा होता है तो उसका सरफेस एरिया कम है. अब ये हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, सो वील से दैट रिबन हैज लोअर सरफेस एरिया. So less particles exposed, या आप ये भी कह सकते हो कि less particles collide per unit time, या आप ये भी लिख सकते हो less number of collisions per unit time, less frequent collisions per unit time, या collision rate decreases. ठीक है, अगर आप rate का लफ्ज यूज कर रहे हो आपको पर यूनिट टाइम लिखने की जरूरत नहीं है. सही है, लेकिन अगर आप कोलिशंस का यूज कर रहे हो, आप पार्टिकल्स कोलाइडिंग का कोई भी आइडिया यूज कर रहे हो तो पर यूनिट टाइम का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है. ऑलराइट, मेथनोइक एसिड रिएक्ट्स विद प्रोपेनॉल टू फॉर्म एन एस्टर. इसमें हमने पढ़ा था दैट व्हेनेवर यू फॉर्म एस्टर्स you remove H from one side, OH from one side, and the alcohol provides the alkyl group. It's the alcohol that's going to give us this. ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो भी चीज आएगी उसमें अल्कोहल की तरफ से अल्काइल आएगा. सो प्रोपेनॉल है तो प्रोपाइल आएगा, और मेथनोइक है तो मेथनोएट बन जाएगा. ऑलराइट, सो देयर यू गो. यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. यू कैन ड्रॉ इट एनी वे. आप मेथनोइक एसिड वाली साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप प्रोपाइल वाली साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इफ आई ट्राई टू डू इट थ्रू द मेथनोइक साइड, आई हैव दिस थिंग ऑक्सीजन एंड देन देयर इज 3 carbons with hydrogens there. Obviously, because we are doing exact paper, we will not leave the H out. We will have to write that there. Okay, so this part on one side, this is propyl, and this part here is methanoate. What part of it makes it methanoate? This COO part is the one that makes us O8 and meth, because there is only 1 carbon there. Okay, अगर किसी को ये डायरेक्ट बनाने में प्रॉब्लम है तो उनको क्या करना चाहिए? उनको पहले मेथनोइक एसिड बनाना चाहिए. तो वो पहले मेथनोइक एसिड बना लें, फिर वो प्रोपेनॉल बना लें कि हमारे पास ऐसे प्रोपेनॉल होगा. एंड नाउ
what you have to do is you have to remove it. You have to remove H from here, you have to remove OH from here, and then join the two. उसको draw कर लें. So having a pencil handy will help. Ethanoic acid is present in vinegar. Name the organic product compound which is converted to ethanoic acid when vinegar is made. तो वो हमसे पूछ रहा है कि ethanoic acid किससे बनता होगा. अब हमें पता है कि कोई भी एसिड जो बनता है वो ऑक्सीडेशन से बनता है. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो हमारे पास एथेनॉल होगा जिससे एथेनोइक एसिड बनेगा. अच्छा, अब यहां पर एक और क्वेश्चन, आई हैड अ स्टूडेंट वंस हु सेड कि एथेनोइक एसिड बनाने के लिए हम एथेनॉल भी तो यूज कर सकते हैं. दैट्स अनदर कंपाउंड, एथेनॉल. बट द थिंग इज, ओ लेवल्स के बच्चे से आप एक्सपेक्ट तो नहीं करते कि उसे एथेनॉल का पता हो. तो पहली बात तो ये कि एथेनॉल लिखना टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन ये हमारे सिलेबस से नहीं है. मार्क आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल ठीक है. अच्छा, एक और सवाल विनेगर बनाते हुए का सवाल है. द क्वेश्चन इज नॉट कि वैसे जनरली एथेनोइक एसिड को कैसे करते हैं, विनेगर बनाते हुए कैसे करते हैं. अब उसमें देखो, द टिपिकल रिएक्शन डन इन इंडस्ट्रीज, दे टेक एथेनॉल एंड दे कन्वर्ट दैट. इंडस्ट्री में कोई बंदा फैक्ट्री नहीं लगाता विनेगर की मैं एथेनॉल लूंगा और उससे कन्वर्ट करूंगा. तो अगर आपको कोई भी चीज सिलेबस के बाहर की पता है, देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म इन राइटिंग अबाउट इट. टेक्निकली वो बिल्कुल ठीक होती है, ठीक है. बट सिलेबस कम्स foremost when it comes to your exam, because sometimes the examiner wants answer from the syllabus, और हम उसको we cannot hold him accountable कि आपने ये accept क्यों नहीं किया, क्योंकि we cannot challenge them. What type of chemical reaction is this? This is something that you have to recall. Remember, I told you that knowledge with understanding is the first objective that the assessments are about. Knowledge with understanding. There are 3 assessment objectives. तो उनमें पहले वाला ये है कि knowledge with understanding. तो ये ऑक्सीडेशन हमारे पास वो टाइप ऑफ रिएक्शन है और ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है. Okay. Predict the density of ethanoic acid. Now, when it comes to prediction, you have a range, because you see, we look at the data that we have given और उसको यूज करके हमें निकालना होता है. ठीक है. तो अभी हमारे पास जो ट्रेंड है वो ये है कि 1.22 है, वहां से वो 0.99 पे चला गया. द थर्ड स्टेप देयर. ठीक है. तो ethanoic acid should be somewhere between it. सही है. अब ऑब्वियसली वो कहीं पर भी इनके बीच में हो सकता है, क्योंकि यू सी द ट्रेंड्स आर नॉट दैट लीनियर. यहाँ पे 0.03 का फर्क पड़ रहा है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, 0.06 का फर्क नहीं पड़ रहा है. दैट इज व्हाई you can pick any value that is within the range. So I would suggest maybe add the two numbers, divide by 2. So let's say we add the two numbers, 1.22 plus 0.99. Sorry, it should be 1.22. And we divide by 2. And that gives us what? 1.105. So 1.1 लिखते हैं, 1.1 लिखते हैं, 1.11 लिखते हैं, आप 1.2 लिखते हैं अगर आपको बहुत एक्सट्रीम में जाना है, या 1. 1 लिखते हैं अगर आपको दूसरी एक्सट्रीम में जाना है. बट कीप इट इन द मिड वे टू गेट अ बेटर आइडिया. ठीक है, तो इट्स फाइन. अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल है. क्वेश्चन में उसने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा हुआ है, तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखें. आप 1.10 लिखते हैं, 1.11 लिखते हैं. ठीक है. Describe and explain the change in the boiling point as the number of carbon atoms in a molecule increases. अब वो जनरल नहीं बात कर रहा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर रहा है. तो यहाँ पे कोई एल्केन्स के बारे में लिखना जरूरी नहीं है. आप यहाँ पे देखें व्हाट्स हैपनिंग. आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, तो डिस्क्रिप्शन डेटा को देख के आपने बतानी है. तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. क्लियर हमें नजर आ रहा है. लेकिन साथ ही उसे एक्सप्लेन भी मांगा है, रीजन भी मांगी है. तो रीजन बॉइलिंग पॉइंट की क्या होती है? किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की रीजन कहां से आती है? इंटर मोलेक्युलर फोर्सेस.
So why is the boiling point increases? Because intermolecular forces of attraction are becoming stronger. और यहाँ पे IMF नहीं बोलना है इसको पूरा लफ्ज लिखना है that intermolecular forces of attraction या forces of attraction between molecules they increase, and that is why boiling point increases. So अब लिखते हैं that it increases because intermolecular forces of attraction increase. There you go. कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी रीजन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस से आप कर सकते हो, लेकिन अब यहां पर देखो उसने क्या किया। यूजुअली हमें ये समझाया जाता है कि एक पॉइंट का एक मार्क होता है, यहां पे हमने 2 पॉइंट लिखे हैं लेकिन उनका 1 मार्क है। सो एग्जामिनर डज दिस थिंग, तो आपको उसके लिए रेडी होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर। अब ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। Iron is extracted from iron ore in a blast furnace using limestone and coke. What's the formula of limestone, people? Do you have your notebook that I asked you to keep with you? CaCO3. CaCO3, lime family की चारों members आपको पता होना चाहिए। Lime क्या होता है, lime water क्या होता है, slake lime क्या होता है, और limestone क्या होता है। ये चारों, make a note if you haven't. Lime is CaO, lime water is CaOH in aqueous conditions. It's a saturated solution of slake lime. Slake lime क्या है, CaOH2 solid conditions. And limestone calcium carbonate. कहां पे यूज होते हैं ये lime water? कहां पे यूज होता है बताएं? Test of CO2. Very good, test of carbon dioxide. Slake lime कहां पे यूज होता है? Impurity. It is impurity sometimes, but where is its use? It is used to fix soil acidity. Soil की pH को ठीक करने के लिए यूज करते हैं इसको, slake lime को. And limestone कहां पे यूज होता है? Making marble or stone buildings and extraction of iron, जो यहाँ पे उसने बता दिया हमें, सीमेंट वगैरह बनाने में भी यूज होता है। Okay. Name a common ore of iron. Iron का 2 ores आपको याद होने चाहिए। The most common is hematite. तो आप hematite लिखते हैं। Sometimes वो एल्यूमिनियम के बारे में भी ये सवाल पूछ लेता है, तो एल्यूमिनियम वाले को भी याद रखें। एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट। तो आपको 2 ओर्स का पता होना चाहिए। आयरन का है हेमाटाइट और एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट। ठीक है। क्रायोलाइट टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए होता है ना एल्यूमिनियम। Yes, cryolite is added to reduce the melting point. It's added as an impurity. It's not the main ore from which we get aluminium out. The main ore, the common ore, is bauxite. Similarly, iron का magnetite भी होता है, लेकिन वो common नहीं है, वो main नहीं है हमारे लिए. Okay? The coke burns to form carbon dioxide. The reaction is exothermic. In terms of bond making and bond breaking, why is this reaction exothermic? There are 2 parts to this. First part is the explanation of energy with bond breaking and bond making. तो आप देखेंगे कि bond making is exothermic, bond breaking is endothermic. पहली बात तो आप ये बताएंगे, या आप ये भी बता सकते हैं कि bond making releases energy, bond breaking absorbs energy. दोनों में से कोई एक बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात करनी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में हमें उसने पूछा है कि पहले इसका रिलेशन तो इस्टेब्लिश कर लो कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कौन सा होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे कि ये रिएक्शन क्यों एक्सोथर्मिक है। पहले हम जनरल बता रहे हैं, पहले हम बता रहे हैं कि बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग का एक्सो एंडो से ताल्लुक क्या है। तो बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। एक ये लिख सकते हैं आप, दूसरा लिख सकते हैं बॉन्ड मेकिंग रिलीजेस एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग अब्सॉर्ब्स एनर्जी। And the second point would be that in this process, the energy of bonds made is more than the energy of bonds broken. कि भाई बॉन्ड मेकिंग वाला पार्ट ज्यादा है इसलिए ओवरऑल एक्सोथर्मिक हो गया।
ठीक है, और ये हमें याद होना चाहिए, जब भी आप एनर्जी दोगे सिस्टम को तो उसकी बॉन्ड्स टूटेंगी, जब भी आप एनर्जी लोगे सिस्टम से उसकी बॉन्ड्स बनेंगी। ठीक है, तो ये आपका एंडो पार्ट होता है, ये आपका एक्सो पार्ट होता है। जो साइड बड़ी होगी ओवरऑल रिएक्शन वो वाला हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स कहते हैं बॉन्ड्स मेड आर ग्रेटर और मोर देन बॉन्ड्स ब्रोकन। ये नहीं है, बॉन्ड के नंबर से फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड एनर्जी से फर्क पड़ता है। ऑलराइट, carbon dioxide reacts with hot coke to form carbon monoxide. The carbon monoxide reduces the iron 3 oxide in the iron ore. Use this equation to explain why iron oxide is reduced. हमने इस equation को use करना है. There are at least 3 explanations of why iron oxide is reduced, but only one of them is valid here because they asked us to use this equation. तो आप इस इक्वेशन को देख के बताओ कि क्यों हो रहा है ऐसे। इसलिए हो रहा है क्योंकि आयरन ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। आप ये कह सकते हो कि आयरन हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से वो रिड्यूस हुआ है, लेकिन वो इस इक्वेशन से नहीं पता चल रहा है। इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे आयरन के साथ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज लूजिंग ऑक्सीजन। ओके, calculate the maximum mass of iron formed when 12.5 gram of iron 3 oxide reacts with excess carbon monoxide. So excess carbon monoxide we don't need to consider it. 12.5 grams of iron 3 oxide और हमें आयरन चाहिए, तो हमारे पास दो चीजें हैं, आयरन 3 ऑक्साइड है और आयरन है, और हमें इनके मास देखने हैं, इसका भी मास देखना है, इसका भी मास देखना है। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू फिगर दैट आउट। व्हाट इज द यूनिट वैल्यू, 1 मोल के लिए वैल्यू देखो। 1 मोल आयरन ऑक्साइड कितना होता है, उसका एमआर कैलकुलेट करें। So there's 2 iron, so 56 times 2 because of that. So 56 times 2 plus 3 oxygen, so 3 times 16. Total हो गया 160. So इसका मतलब है 1 mole iron oxide is 160 grams and 1 mole iron is 56 grams. हमने यूनिट वैल्यूज लिख दी, स्टैंडर्ड वैल्यूज लिख दी। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 12.5 ग्राम्स ये, और ये हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। So it will give me 160x is equal to 12.5 times 56. I'll divide that and I'll get my answer. एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो टेक्स्ट बुक तरीका है, जो हमारे पास हर टीचर हमने पढ़ा हुआ है, कि पहले आप आयरन ऑक्साइड के मोल्स निकालो। सो मोल्स ऑफ Fe2O3। हमेशा कोशिश करें कि बात समझ में आए जो आप लिखें, खाली मोल लिखेंगे समझ नहीं आएगा, मोल Fe2O3 लिखेंगे समझ आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। You are 12.5 divided by 160, you will get an answer. What answer will you get? So 12.5 divided by 160, 0.0781, that is the number of moles of iron oxide that you have. Now moles of iron equals mass over mr. अच्छा, अब इसमें आप देखो आपके पास रेशो क्या है, 1 मोल ये होता है तो 2 मोल ये होता है, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करें तब भी आपने 2 यहां पे लिखना है और यहां पे 2 लिखना है। ठीक है, क्योंकि 1 to 2 की रेशो है। तो यहां पे भी आप देखो कि अच्छा रेशो पहले निकाल लेते हैं। 1 मोल 2 प्रोड्यूस करता है तो 0.0781 x प्रोड्यूस करेगा, तो इसको डबल कर देंगे तो आपके पास मोल्स ऑफ आयरन आ जाएंगे। कितने आते हैं, 0.0781 को डबल करें, so 2651, 0.1562, ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। अब आप मोल इक्वल मास और एमआर करें, 0.1562 इज इक्वल टू मास ओवर 56, क्योंकि आयरन का एआर 56 है। तो अब आप एमआर नहीं लिखो, आप एआर लिखो, लेकिन अगर आप एमआर लिख भी देते हैं एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। तो हमारे पास मास आ गया 56 टाइम्स 0.1562 and that is what the answer is. चाहे आप जिस मर्जी मेथड से आए, ये जो मैंने बनाया हुआ मेथड आप इससे भी कर सकते हैं, जो आपने मोल्स वाला मेथड सीखा हुआ है आप उससे भी कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। सब कर लेंगे? ओके, मूविंग ऑन।
Silicon dioxide is an impurity in the iron ore. Explain how the addition of limestone helps remove silicon dioxide from the blast furnace. इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. आप हाई टेम्परेचर पे लाइमस्टोन ऐड करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या होता है? अभी हमने किया था lime. CaO is lime. TaCO3 is limestone. That CaO joins SiO2 to produce calcium silicate. Addition reaction है. Like it's not the organic chemistry वाला addition. ये बस join करके एक चीज बना रहे हैं. तो अब आप ये लिखेंगे कि या तो आप ये explanation लिखने के लिए equations लिख रहे हैं. अब equations लिखना chemically it's a sound approach, but if you look at the question is saying explain, थोड़ी explanation लिखना जरूरी होगी. तो इसलिए बेहतर है कि आप equation की बजाय बता देंगे क्या हो रहा है यहाँ पे. आप बताएं कि कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज करके ये चीजें बना रहा है और वो कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके स्लैग बना रहा है which is taken out. ठीक है, आपने स्लैग का लफ्ज यूज नहीं करना, आप कैल्शियम सिलिकेट पूरा लफ्ज यूज कर लें. बोथ ऑफ देम आर फाइन. नेक्स्ट, आयरन इज अ मेटल. डिस्क्राइब मेटेलिक बॉन्डिंग. अगेन डिस्क्रिप्शन मांगी है उसने, तो डिस्क्रिप्शन का मतलब है वहां पे है क्या मेटेलिक बॉन्डिंग. तो मैंने आपको बताया था 3 बातें कोई भी बॉन्डिंग है उसमें आपने लिखनी है. पहली बात है स्ट्रक्चर, दूसरा है पार्टिकल्स, तीसरा है फोर्स. एनी बॉन्डिंग दैट यू गेट, यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, द पार्टिकल्स, द फोर्सेस. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उनमें से 2 भी आप लिख देंगे तो आपको मार्क मिल जाएंगे. स्ट्रक्चर क्या है? मेटल हैज लेयर्स ऑफ कैटाइंस, ये स्ट्रक्चर है, और कैटाइन पार्टिकल्स है. अगर आप लिख and sea of free electrons. और मेटेलिक बॉन्ड यहां पे फोर्स होगी. कौन सी फोर्स क्या है? तो आप लिखें there are layers of cations with sea of electrons with strong, अगर लफ्ज याद है तो लिख दें इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर याद नहीं है तो खाली छोड़ दें strong forces of attraction. बस ये आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग है. यही वो आपसे आयनिक बॉन्डिंग पूछ लेता तो आप लिखते कि लैटिस ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. यही वो आपसे कोवेलेंट बॉन्डिंग पूछ लेता तो आप लिखते कि इट इज, अच्छा यहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग में वो आपसे पूछेगा तो लेट्स सपोज वो कहते हैं सिंपल मोलिकुलर स्ट्रक्चर या उसके अंदर बताएं, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग आप बताएंगे इट इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स और पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड द 2 न्यूक्लियाई. ना मॉलिक्यूल की बात करने की जरूरत है, ना कोवेलेंट ना जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर की बात करने की जरूरत है. यहां पे आपने सीधा सीधा उस बॉन्डिंग को, उस फोर्स को डिस्क्राइब कर देना. ओके, वी डन विद दिस. ऑलराइट, dilute sulfuric acid reacts with sodium hydroxide as shown. रिएक्शन इक्वेशन दे दिया उसने. मोल रेशियो के लिए ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत यूजफुल है. इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हमारे पास क्या है. हर एसिड और बेस के अंदर 3 चीजें होती हैं, NCV. ठीक है, N हमें निकालना होता है यूजुअली, C और V हमें यूजुअली गिवन होता है, बट क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो वेरी करता है. अच्छा जी, a student titrates 25 cm cube, so volume of sulfuric acid is 25 cm cube with sodium hydroxide of concentration 0.015. So 0.015 concentration of sodium hydroxide मिल गया. Using litmus as an indicator, क्या कलर्स होंगे उसमें? कोनिकल फ्लास्क में उसने
क्या किया था, 25 cm क्यूब एसिड डाला था और फिर टाइट्रेशन के थ्रू उसने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया। तो मुझे बताएं उसका शुरू में कलर क्या होगा और बाद में कलर क्या होगा? टेल मी पीपल, लिटमस है, शुरू में क्या कलर होगा, बाद में क्या कलर होगा? Sir, red to blue. Very good, red to blue, exactly. All right. A volume of 24 cm cube of sodium hydroxide, इसकी वॉल्यूम भी मिल गई है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं पता। एसिड बेस रिएक्शन है ना, वी हैव अ शॉर्टकट, CV over N of acid equals CV over N of alkali. Concentration of acid is unknown, volume is 25, N is from the equation, वो 1 है। Concentration of alkali is 0.015, volume is 24, N is from the equation 2. Solve कर दें, आपके पास बन जाएगा x equals 0.015 into 24 over 2 into 25. Whatever answer you get. अगर वो नहीं करना कोई मसला नहीं है। Start by first finding number of moles of things that you know. So number of moles of NaOH, concentration times volume. जो भी आंसर आएगा अभी निकाल लेते हैं क्या आएगा। डिवाइड बाय 1000 करना नहीं भूलना, क्योंकि वो हमें CM क्यूब से DM क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। 0.024 इक्वल्स 0.0004, तो 4 into 10 पर -3 या 0.0004। ये मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। इनको यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड निकालेंगे। कैसे? मोल रेशियो से 1 to 2। अगर ये 0.0004 है तो ये x होगा और x हमारे पास आएगा उसका हाफ। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं एसिड के। अब आप फॉर्मूला यूज करें, n equal to CV 0.0002 equals concentration is unknown, volume is 25 over 1000. Don't forget to divide by 1000. And when you do that, you will get your concentration. आप जिस मर्जी मेथड से करें, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। 0.008 moles per dm cube, so 0.008 moles per dm cube या 8 into 10 पर -3, दोनों ठीक है। Describe how you would prepare pure dry crystals of sodium sulfate from aqueous sodium sulfate. हमें उसने पहले ही सॉल्यूशन बना के दे दिया, एक्वस है, सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का, और उसी के क्रिस्टल्स बनाने। इससे आसान प्रोसेस क्या हो सकता है? हमने बताना ही नहीं है कि किस चीज से हमने इसको बनाना है, ना हमने बताना है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड लो या सोडियम कार्बोनेट लो और सल्फ्यूरिक एसिड लो, कोनिकल फ्लास्क में डालो। कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं, कोई फिल्ट्रेशन अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, हमें उसमें से पानी को खत्म करना है, तो वी विल हीट इट। तो आप लिखेंगे कि हीट इट टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, या इवेपोरेट टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, या इवेपोरेट टू saturation point, or make a saturated solution. So that's the first step you need to do once you have your solution. आपको उसे इवेपोरेशन करनी है, हीट करना है, ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट बन जाए। Once you have that, the next step is कि आप अपने क्रिस्टल्स को वॉश करें। वॉश क्यों करना है? ताकि इंप्योरिटी चली जाए, कोई भी अगर है तो फिल्टर करें, वॉश करें। अच्छा, वॉश हम इसे गर्म पानी से नहीं करेंगे, उसकी वजह ये कि अगर हॉट वाटर होगा तो इसमें ये क्रिस्टल भी जल्दी से डिसॉल्व हो जाएंगे। वी विल वॉश इट विद समथिंग जिसमें ये क्रिस्टल इतनी जल्दी डिसॉल्व ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्रिस्टल रहे। तो आप इसे ठंडे पानी से कर सकते हैं, आप इसे किसी ऐसे सॉल्वेंट में कर सकते हैं जो क्रिस्टल को डिसॉल्व नहीं करता। आप कह लो कि एथेनॉल से वॉश करते हैं, आप कह दो कि वॉश विद
सिंपल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप लिखते हैं, प्रोपेनोन लिखते हैं, आप कोल्ड वाटर लिखते हैं, कोई ऐसी चीज जो क्रिस्टल को डिसॉल्व ना करे लेकिन इंप्योरिटी को लेके चली जाए. सो फिल्टर द क्रिस्टल्स, वॉश एंड देन ड्राई इन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर. बात खत्म. 3 स्टेप और बड़ी डिटेल में आपने बता दिया कि क्रिस्टल कैसे बनाने सॉल्यूशन से. आई रिपीट, heat or evaporate to crystallization point, yeah, saturation point, yeah, when you get a saturated solution. Filter and wash in cold water, yeah, filter and wash with organic solvent, yeah, filter and wash with ethanol or propanol. Next step, dry in folds of filter paper. All right, complete the equation. हमें बेसिकली इसको बैलेंस करना है. बैलेंस करने के लिए आपने ये देखना है कि आपके पास क्या गिवन है. आपको पता है कि 6 सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये भी 6 ही होगा क्योंकि सल्फर तो कहीं और से आ ही नहीं सकता. और 4 AS4 है, तो 4 आर्सेनिक. ओके, अब पानी बैलेंस कर दो आप. 6 H2 है तो 6 H2O बन जाएगा. बात खत्म, बैलेंस्ड, डन. Sulfur dichloride has a simple molecular structure. Complete the dot and cross diagram for sulfur dichloride. Remember, sulfur is in group 6, chlorine is in group 7. Sulfur को 2 शेयर करना है, chlorine को 1 शेयर करना है. आप जब भी ये डायग्राम बनाएंगे, you will fill the electrons for the outer electron first. Central atom में बाद में आएंगे. So chlorine यहाँ पे साइड में है, एक पेयर बना लिया. 3 पेयर इसके अपने हैं जो कि शेयर नहीं किए इसने, वो हम साइड पे बना लेंगे, उनको भूलना मत. अच्छा, अब इस पे आ जाएं. आउटर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, एक ये हो गए. 3 इसके अपने हैं जो इसने शेयर नहीं किए. ओके, अब सल्फर के पास 6 थे, 2 शेयर हो गए, तो 2 पेयर हमारे पास ऐसे साइड पे रह जाएंगे. तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, बाकी 4 रह गए, वो हमने 2 पेयर बना ली. प्लेसमेंट से फर्क नहीं पड़ता है, बट ट्राई करें कि हमेशा उसे एज अ पेयर लिखें. Next, melting point of sulfur dichloride is this. The boiling point of sulfur dichloride is this. Deduce the state of sulfur dichloride at room temperature. -121 लिखें, 59 लिखें. Imagine this is a number line. 25 कहाँ आएगा? इसके पीछे ये solid है, इसके बीच में ये liquid है, इसके आगे ये gas है. 25 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा ना? तो इसका मतलब है liquid. तो it's a liquid. Reason: 25 डिग्री सेल्सियस is less than the boiling point but higher than the melting point. तो मेल्ट हो गया है, उसके बाद वो आगे बॉयल हुआ है. इसके बाद हमारा एक आखिरी सवाल रह गया. We'll complete it and we'll be done with this paper. अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. Now we have this thing, we are given the proton number, the neutron number. It's saying there's 82 protons and 2 of the electrons are lost. So that means it is 80 electrons. Number of neutron 207 minus 82, whatever it gets. Lead का अगर periodic table में कोई और नंबर लिखा हुआ है, कोई 207 की बजाय 208 लिखा हुआ है या कुछ और, आपने उसको कंसिडर नहीं करना, because this is the isotope that we are considering here. Describe a test for oxidizing agent. किसी भी oxidizing agent को react करने के लिए हमें reducing agent चाहिए होता है. तो एक ही reducing agent है आपके सिलेबस में, aqueous potassium iodide. तो आप लिखेंगे add to या react with aqueous potassium iodide. आप उसका नाम भी लिखना चाहें तो that's fine. ऐसे भी लिखना तब भी ठीक है. Observation क्या होगी? Colorless to brown. आप ये भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो solution turns brown from colorless. आप इसको कोई भी सेंटेंस बना के लिख दो, कोई मसला नहीं है. मेन पॉइंट इज colorless और brown. ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए. Alright, lead-4 oxide reacts with concentrated HCl to form lead-4 chloride. फॉर्मूला भी दे दिया, and water. ठीक है. We have lead-4 oxide, so lead-4 oxide. That means lead is +4, oxide is -2. साइड पर उसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, मोल रेशियो निकालें, फ्लिप कर दें, PbO2 बन जाएगा. Reacts with concentrated HCl. We don't need to write state symbols. If we did, we will mention this concentrated.
and it forms lead chloride 4 or lead 4 chloride and water. Next thing is to just balance it out. We'll have 2 of this and it's done. Sorry, we need 4 of that. So ये हो जाएगा 8Cl4 होंगे, 2H2O बनेगा, and now we are balanced. Well, lead 4 chloride. By the way, do you think lead 4 will be colorless or colorful? Colorful होगा, colorless होगा? Colorful होगा, yes. Okay. Describe and explain the effect, if any, on the position of equilibrium when the concentration of chlorine is increased. Increase कर दिया इसको, तो इसको कम करना पड़ेगा. Equilibrium always tries to undo the change on it. So what will we say? We'll say the reaction, the equilibrium goes left. Why does it goes left? Because to reduce the added chlorine, to use up the extra chlorine that you have added, reaction always try to undo whatever you do. तो आपने अगर क्लोरीन ऐड किया है तो वो क्लोरीन जो आपने ऐड किया है वो रिएक्ट करेगी lead 2 क्लोराइड के साथ और lead 4 क्लोराइड बनेगी. तो रिएक्शन या इक्विलिब्रियम goes to the left, using up the added chlorine with lead 2 chloride. Describe and explain, if any, on the position when the temperature is increased. अब उसके लिए हमें ये देखना है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. इट्स सेइंग द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. ओके, सो इसका मतलब है अगर वो फॉरवर्ड की तरफ आता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर बैकवर्ड की जाता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है. आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो उसने ऑब्वियसली उसको खत्म करना है ना. द एडेड एनर्जी दैट यू हैव एडेड, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने उसे दी है वो उसने अब्सॉर्ब करनी है, वो उसने यूज अप करनी है. तो इक्विलिब्रियम अगेन गोज टू द लेफ्ट to absorb the extra energy that you've given. Kyunki remember, when you increase the temperature, you're giving them kinetic energy. That kinetic energy needs to be absorbed, needs to be converted to bond energy for the reaction to reach equilibrium again. Last question, name a lead salt which is soluble in water. Remember SNAP, all SNAP salts are soluble. So आप लिखते हैं lead nitrate या lead 2 nitrate या lead 4 nitrate. लेड 4 नाइट्रेट वैसे नहीं होता तो आप लेड 2 नाइट्रेट ही बोल दो या खाली लेड नाइट्रेट बोल दो. एंड वी आर डन विद दिस पेपर. दिस वाज विंटर 2020 पेपर 2-2. योर होमवर्क इज टू कंप्लीट विंटर 2020 पेपर 2-1 एंड 2-3. 2-1 आप कल कर लें, 2-3 आप वीकेंड पे कर लें. ओके, यस सर हम एमसीक्यूज नहीं करेंगे. We'll do MCQs, we'll do ATP, all the papers. Ideally, I would like to complete 15 years papers with you, depending on how much time you give. But minimum तो 10 years तो हमें कोशिश करनी ही चाहिए. All right, take care.